ओके, बादल. ओके, दुपारून कोणीतरी बोलणार होतं, सकाळी सांगितलं होतं. सारा, इज देअर सारा शेख? येईल. ओके, आपण वेट करूया. ओके ओके, ठीक. सारा नाही, कोण बोलतं? चला सांगा. अनुष्का, ठीक आहे. अनुष्का गोरडे, बोला मॅडम, बोला. Phylum Porifera, Cycon, Skyfast, Spongilla, Pressure. व्हिडिओ चालू करा तुमचा मॅडम. इफ पॉसिबल यू कॅन स्टार्ट युअर व्हिडिओ. ओके ओके, बढ़िया. हाँ, Phylum Porifera, Cycon, Skyfast, Spongilla, Pressure, Freshwater Sponge, Spongia, Bass Sponge. Phylum Cylindrita, Facilipatus, Manaquar, Adamsia, Sea Anemone, Penatula, Sea Pen, Gorgonia, Sea Pen, Meandrina, Brain Coral, Aurelia, Jellyfish, Obelia, Poem, Hydra. Phylum Tinophora, Pleurbranchia, Tinoplana, Phylum Platyhelminthes, Tinia, Tapeworm, Fasciola, Liver, Planaria Regeneration. Phylum Aschelminthes, Ascaris, round one, Ucheria, Philorama, Ankylostoma, hookworm. Phylum Annelida, Nereis, Dioecious, Ferritima, earthworm, Hirudinera, blood-sucking leech. Phylum Arthropoda, economically important insect. Apis, honeybee, bombyx, silkworm, laxifer-like insect. Vectors: Anopheles, malaria, Culex filariasis, Culex Japanese encephalitis, Aedes dengue, Aedes chikungunya, Aedes aegypti, Gregarious fish, Locusta locus, living fossil, Limulus quincta. Phylum Mollusca, Paella, apple snail, Pinctada palustral, Sepia cuttlefish, Loligo squid, octopus, devilfish, Aplysia sea, Dentellum tussle, Chitopleura chiton. Phylum Echinodermata, Asteria starfish, Echinus sea urchin, Antedon silili, Cucumaria Cucumber, Ophiorhabditas star. Phylum Hemichordata, Ballonglossus, Saccoglossus. Phylum Chordata, subphylum Urchordata, Ascidia, Salpa, Doliolum. Subphylum Cephalchordata, Branchiostomata, Amphiaxis or Langsley. Subphylum Vertebrata, class Cyclostomata, Petromyzon lamprey, Myxin, hagfish. Class Chondrichthyes, Scoliodon, dogfish, Tristis, sawfish, Carcharodon, great white shark, Trigon, stingray, torpedo, electric ray. Class Osteichthyes, marine fishes, Exocetus, flying fish, Hippocampus, seahorse, freshwater fishes, Labeo, rohu, catla, cutla, Clarius, magur. Aquarium fishes, betta, fighting fish, Pterophyllum, angelfish. Class Amphibia, Buffalo, Rana, frog, Hyla, tree frog, salamander, Ichthyopus, limbless, amphibia. Class Reptilia, Chelon, turtle, Testudo, tortoise, Chameleon, lizard, Calotus, garden lizard, Crocodilus, crocodile, alligator, Hemidactylus, wall lizard. Poisonous snakes, Nadja, cobra, Bungarus crate, Vipera, viper. Class Eutes, Corvus, crow, Columba, pigeon, Citacula, parrot, Ruthie, ostrich, pavo, peacock, attendance penguin, neopron, vulture. Class Mammalia, oviparous mammals, Ornithorhynchus, platypus, viviparous mammals, Macropus, kangaroo, pteropus, flying fox, Camulus, camel, macaque, monkey, Ratus, rat, Canis, dog, Felis, cat, Elephas, elephant, Equus, horse, Delphinus, common dolphin, Belnoptera, blue rat, Panthera tigris, tiger, Panthera leopard, lion. Thank you. क्या बात है, क्या बात है. अनुष्का एक्सप्रेस फ्रॉम
कहाँ से हो बेटा आप? बालानगर। बाला बाला बा सॉरी बालानगर। बालानगर ओके, औरंगाबाद। हो, गाव बालानगर. ओके ओके. आणि पैठण जवळ आहे का? बरं, मला माहित नाही. यस सर. चालू. हा, पैठण तालुका. आणि स्कूल बेटा तुमचं? श्री सरस्वती भवन. वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. और मीडियम, सेमी, मराठी, सीबीएसई? मराठी. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. वाह. अनिष्का गोरडे, बहुत ही बढ़िया बेटा. वाह, अभिनंदन. खूब खतरनाक, फास्ट थैंक एकदम. यू सर. ओके, बहुत बढ़िया. Yes, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. बहुत ही बढ़िया. कितने परफेक्ट हो गए ना. इसका ये क्यों हुआ है पता है? ये रिवीजन का कमाल है. इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिवीजन दोस्तों. नाउ लेट डिस्कस अबाउट द बर्ड्स और एव्स. पहले लिखता हूं और फिर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बर्ड्स के बारे में. ओके, नाउ जॉ इज मॉडिफाइड. फीदर्ड बाइपेडल्स होते हैं, ट्रू फ्लाइंग वर्टिब्रेट है. जॉ इज मॉडिफाइड इनटू बीक. ओके, now number 4, that is forelimbs are modified into wings. forelimbs are modified means forelimb का कन्वर्जन होता है wings में. ओके, wings में. नंबर 5 पॉइंट है, that is point number 5 about the aves. दोस्तों स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी. पॉइंट नंबर 6, that is जो हाइंड लिम्स है have scales and modified for walking, swimming and clasping the branches of tree. Hind limbs have scales and are modified for सब एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में. modified for दोस्तों that is walking. कुछ बर्ड जो एक्वेटिक होते हैं यूज दैट देयर हाइंड लिम्ब फॉर swimming purpose, and some can use their hind limb for clasping. clasping का मतलब है to hold, clasping the branches of tree. समझाता हूँ ये क्या होता है. branches of tree. Now point number, that is they have four chambered heart with two atria and two ventricles. They have complete double circulation like mammals. Point number 8, that is kidney is metanephric. किडनी कैसी है? किडनी दोस्तों इनमें मेटानेफ्रिक किडनी होती है, डेवलप फ्रॉम लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ नेफ्रेटिक डक्ट. मेटानेफ्रिक किडनी है. ओके, नाउ ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, दैट इज पॉइंट नंबर 9, दैट इज अ स्किन. जो स्किन होती है दोस्तों, दैट स्किन इज ड्राई. इन बर्ड स्किन इज ड्राई and without दोस्तों without glands. एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में. एक्सेप्ट दोस्तों, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स, और इनका दूसरा नाम जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है वो होते हैं प्रीन ग्लैंड्स. ऑयल और प्रीन ग्लैंड्स लोकेशन है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल. प्रेजेंट एट द बेस, कैपिटल में लिखूंगा क्योंकि ये बेस की जगह अपेक्स आएगा, ऑफ टेल. ये है दोस्तों. देन इन बर्ड्स याद रखो, दैट इज रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स.
Okay, they respire by lungs and they have दोस्तों air sac, okay, for the supplementation of respiration by lungs and air sac, unique feature है, air sacs are connected to lungs, okay, for supplementation of respiration, means for additional respiration, ये additional help है, supplementation of respiration. Air sac is the unique feature. ये समझाता हूँ क्या होता है, ये बर्ड का यूनिक फीचर दोस्तों. फिर दूसरा पॉइंट है, दैट इज जो स्कल है इन बर्ड, दैट स्कल इज दोस्तों 1 2 1 1 2, तो स्कल होगी मोनोकोंडाइलिक स्कल है. आपको पता है फार बीएम का फॉर्मूला, फार बीएम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है दोस्तों, दैट इज 1 2 1 1 2. तो बर्ड में स्कल इज मोनोकोंडालिक, पॉइंट नंबर 12, एंड दैट इज दोस्तों, दैट इज ऑर्गन ऑफ साउंड. जो साउंड ऑर्गन है उसका नाम है दोस्तों सैरिंक्स. सैरिंक्स इज द साउंड ऑर्गन फॉर साउंड, और ऑर्गन ऑफ साउंड इज द सैरिंक्स. ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, इसे कहते हैं होकल ऑर्गन है. जो आवाज आता है बर्ड का इस ऑर्गन से होता है, होकल ऑर्गन है, उसे कहते हैं सैरिंक्स. हमारे बॉडी में होता है होकल कॉर्ड, दैट इज लोकेटेड इन लैरिंक्स, तो ये है सैरिंक्स. पॉइंट नंबर 12 13, दैट इज दे हैव दोस्तों जो बोन्स होते हैं, जो बोन्स है बर्ड में, जो लॉन्ग बोन होते हैं, लॉन्ग बोन्स, वो है दोस्तों दे हैव हॉलो विथ एयर कैविटी, दे आर हॉलो विथ एयर कैविटी, उसे कहते हैं न्यूमैटिक. अंदर से खाली होते हैं, हॉलो है विथ एयर कैविटी, known as दोस्तों such bone is known as a pneumatic means खाली, hollow pneumatic bone, and there is a no bone marrow in long bone. There is a no, कैपिटल में लिखता हूं, no bone marrow क्या होता है ये भी समझाता हूं. There is a no long bone marrow in long bone. वो हॉलो है ताकि ये दोस्तों होलंट एडाप्टेशन है, फ्लाइंग के लिए, फ्लाइट के लिए, याद रखो. नाउ और एक एडाप्टेशन है, दैट इज पॉइंट नंबर 14 आएगा, दैट इज इनका जो एंडोस्केलेटन है दोस्तों, एंडोस्केलेटन ये जो होता है इट इज ऑसिफाइड है, मतलब बोनी एंडोस्केलेटन है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है, मींस बोन से बना होता है, इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज ऑसिफाइड, मींस मेड अप ऑफ बोन. ऑसिफाइड मतलब मेड अप ऑफ बोन्स, मेड अप ऑफ बोन्स. हमें पता है नॉनवेज खाते हो ना आप लोग, कभी जो खाते हो उनको पता होगा. नाउ ये जो दोस्तों दीज आर पॉइंट नंबर 15. और एक इंपॉर्टेंट दैट इज अ लेफ्ट ओवरी इज लेफ्ट. इसका मतलब मैं समझाता हूं, लेफ्ट ओवरी इज लेफ्ट. इसका मतलब है लेफ्ट ओवरी इज लेफ्ट, मतलब मीन्स राइट ओवरी जो होती है फीमेल में, राइट ओवरी इज एब्सेंट इन फीमेल बर्ड. ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. फीमेल बर्ड में राइट ओवरी एब्सेंट है, ओनली लेफ्ट ओवरी इज लेफ्ट. दोस्तों फिर बात करें पॉइंट नंबर 16 की, तो दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल. ये वार्म ब्लडेड है, और इन्हीं का मतलब होता है, वार्म ब्लडेड का मतलब होता है दे आर होमियोथर्मिक. होमियोथर्मिक मींस दे हैव एबिलिटी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल. और दोस्तों दे आर एंडोथर्मिक एनिमल है, एंडोथर्मिक एनिमल्स है बर्ड्स. नाउ और कुछ बातें, दैट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उनका, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है दोस्तों
it has additional chamber, that is a gizzard and crop and gizzard, याद रखो. Digestive tract have additional chamber. ये क्यों होते हैं ये भी बताता हूं, हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा. एडिशनल चेंबर that is crop, okay, for storage of food, for storage of food होता है, for storage of food, okay. And दोस्तों that is crop and gizzard. Gizzard is for grinding of food, MCQ. G for gizzard and it is for दोस्तों grinding of food, that is gizzard, याद रखो. Now और भी कुछ बातें हैं बर्ड्स के बारे में, that is पॉइंट नंबर 18. उनमें जो सेक्सुअलिटी है, कोंबड़ा आणि कोंबडी आहे, तो डायोसियस होते हैं दोस्तों. देज आर डायोसियस मीन सेक्सेस आर सेपरेट. डायोसियस है, सेक्सेस आर सेपरेट. नंबर 19 जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन दोस्तों बर्ड्स में विच इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. जो पैरिटी है मीन्स आर द एग लेइंग एंड ऑल दैट. सो पैरिटी की बात करेंगे दोस्तों, तो पैरिटी इनमें अगर देखा जाए तो ओविपैरस है. ओविपैरस मीन्स एग लेइंग एनिमल है. ओविपैरस मीन्स एग, अंडे देणारे आहेत, एग लेइंग एनिमल है दोस्तों. दीज आर एग लेइंग एनिमल्स. नाउ और अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट में दोस्तों दीज आर ORBM, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट इन बर्ड. सो ये यही बस इतना ही है. दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड विद द क्लास एव्स और बर्ड्स. नाउ प्लीज पे अटेंशन, हर एक पॉइंट डिटेल में जाएंगे. ओके, सम आर फ्लाइटलेस बर्ड भी है दोस्तों, दैट इज ऑस्ट्रिच. एक एग्जांपल है दैट इज फ्लाइटलेस बर्ड, वो है ऑस्ट्रिच. फ्लाइटलेस बर्ड जो है, दैट फ्लाइटलेस बर्ड इज दोस्तों ऑस्ट्रिच शामब्रग. ऑस्ट्रिच इज द फ्लाइटलेस बर्ड. ऑस्ट्रिच के बारे में और एक लाइन, इट हैज द लार्जेस्ट, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है. ये याद रखो, टॉपिक सेल का एक एमसीक्यू है. एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑन द प्लैनेट अर्थ, दैट इज इसका एग. नाउ दिस इज अबाउट द बर्ड. इतना सिंपल है दोस्तों. और एक पॉइंट यहाँ पे लिखना बाकी है, दैट इज क्रैनियल नर्व कितने हैं. यहाँ पे लिखता हूं क्रैनियल नर्व कितने हो जाएंगे. क्रैनियल नर्व होते हैं दोस्तों, दैट इज 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व. कितने हैं, दैट इज 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व. 12 पेयर्स. 10 पेयर्स कितने हैं, 10 फिशेस एंड एम्फीबियंस हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व. फिर दोस्तों दीज आर बर्ड्स आर amniotes or anamniotes. Pan are amniotes, means pisces and amphibians are amniotes. So birds are those, these are, वो anamniotes है तो these are amniotes. Amniotes means presence of extra embryonic membrane. इसका मतलब क्या है दोस्तों, presence of extra embryonic membrane in them. Presence of extra embryonic membrane. They have presence of एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उन एनिमल को कहा जाता है एमनियोट्स मेम्ब्रेन. नाउ वन बाय वन बात करेंगे. बर्ड्स, they are feathered bipedals. Bipedals means these are the animal which can walk on 2 legs. Okay, so these are दोस्तों feathered bipedals. now मान लो ये है बर्ड.
see this, okay, these are feathered bipedals. Again, these are feathered, feather भी है, these are the feather, okay, और बाइपेडल है, बाइपेडल मतलब दो पैर है, इसका मतलब है feathered bipedals. Are you getting me or not? Yes or no? ये समझ में आया? Show me thumbs up. Feathered bipedals अगर आता है तो birds है. Now they are true flying vertebrate. Okay, true flying vertebrate. दूसरे भी flying vertebrate होते हैं क्या? Yes, yes. Are the mammals? Is there any mammal which is flying? Is there mammal which is flying? Yes, bats. Okay, bats होते दोस्तों. Pteropus, flying fox, bats. Is there flying vertebrate? Reptiles? Yes. कुछ ऐसे डायनासोर के जो ये थे दोस्तों, कुछ एनिमल थे डायनासोर लाइक, दे आर आल्सो सर्टेन रेप्टाइल्स आर फ्लाइंग, बट ट्रू फ्लाइंग वर्टिब्रेट में आते हैं बर्ड्स. ना उनका जो जॉ है दैट इज मॉडिफाइड इनटू बिग. सी दिस, देयर जॉ इज मॉडिफाइड इनटू दोस्तों बिग. देयर जॉ इज मॉडिफाइड इनटू बिग. याद रखो, टीथ आर एब्सेंट इन देम. ओके, टीथ्स आर एब्सेंट इन जॉ. यही पे लाइन लिखता हूं, दैट इज teeth are absent. Teeth are absent in jaw. Absent in jaw. ये भी एक बर्ड का ही फीचर है. Now दोस्तों, forelimbs are modified into wings. याद रखो, forelimbs जो होते हैं they are modified into wings. ये भी बर्ड का ही फीचर्स है. Wings, they are used for flying. They have streamlined body like this. ये बॉडी देखो. ओके, बॉडी स्ट्रीमलाइन है एंड दिस इज होलैंड एडाप्टेशन, एरियल एडाप्टेशन है सब. ये इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी लाइक दिस. ये जो बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन बॉडी. सो इट इज हेल्पिंग इन द फ्लाइंग. स्ट्रीमलाइन बॉडी. टीथ आर एब्सेंट इन जॉ. हाइंड लिम्स जो होते हैं, नाउ दीज आर द हाइंड लिम्स दोस्तों. नाउ दीज हाइंड लिम्स दे हैव स्केल्स एंड दीज हाइंड लिम्स दे आर यूज्ड फॉर आइदर वॉकिंग. मान लो कोई भी देखो आप, certain bird they are use their hind limb for walking, some aquatic bird use their hind limb for swimming and clasping the branches of tree. Clasping मतलब suppose मान लो मेरा हाथ ये एक branch है, so these are the four limb, they are used for clasping like this. तो उसके ऊपर बैठते हैं bird by clasping the branches of tree. Clasping मतलब उसको पकड़ना. समझ में आया? Now उनमें 4 chambered heart है. Do you know that 4 chambered heart is present in crocodile, bird and mammal with 2 atria and 2 ventricle. So circulation कैसा होगा दोस्तों? उनमें circulation कैसा है? Which type of circulation is there in bird? दोस्तों उनमें डबल सर्कुलेशन होता है और वो भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा. ऐसे इसे कंप्लीट नहीं लिखते हैं, जस्ट डबल सर्कुलेशन. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज अ फीचर ऑफ दोज एनिमल व्हिच हैव 3 chambered heart, 3 chambered heart and 4 chambered heart जिसमें है उसमें होता है डबल सर्कुलेशन. हम वही सीख रहे हैं उधर. किडनी मेटानेफ्रिक है. नाउ व्हाट इज मीन बाय मेटानेफ्रिक किडनी? Metanephric kidney means the kidney which is developed from metanephros part of nephric duct. Now what is mean by metanephros part? So metanephros part means the lowermost part of that nephric duct. Embryonic structure है एक nephric duct, वहां से अलग kidney develop होती है. So mesonephric kidney is the feature of फिशेस एंड एम्फीबियंस. रेप्टाइल ऑनवर्ड दे हैव मेटानेफ्रिक किडनी. ये थोड़े से ऊपर साइड वाले एमसीक्यू है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर आ सकते हैं. पुराने पापी है, ये पुराने एमसीक्यू है, बहुत बार पूछे गए इसलिए. नाउ ये स्किन के ऊपर एमसीक्यू 101% है. दे आर गोइंग टू कंपेयर द स्किन ऑफ दोस्तों, हमेशा वो स्किन कंपेयर करेंगे रेप्टाइल, बर्ड और एम्फीबियंस की. एम्फीबियंस की स्किन कैसी है? मॉइस्ट है, विदाउट स्केल. रेप्टाइल की स्किन ड्राई और कॉर्निफाइड है विद स्केल, और बर्ड्स की स्किन जो है वो ड्राई है एंड विदाउट ग्लैंड, एक्सेप्ट एक ग्लैंड है दोस्तों जिसके ऊपर एमसीक्यू आता है जिसका नाम है ग्रीन ग्लैंड, सॉरी प्रीन ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड. ऑयल ग्लैंड होते हैं और प्रीन ग्लैंड. ओके, दीज ग्लैंड आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल. ये भी एमसीक्यू है, कहां पे लोकेटेड है? बेस ऑफ द टेल. यहाँ पे वो ग्लैंड होंगे, मान लो बेस ऑफ द टेल पे, मान लो ये सपोज ग्लैंड है. एंड दीज ग्लैंड दे हेल्प इन
लुब्रिकेशन ऑफ फीदर्स, फीदर्स को लुब्रिकेट करने के लिए ये ग्लैंड होते हैं दोस्तों, जिनका दूसरा नाम है प्रीन ग्लैंड। एंड डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन प्रीन ग्लैंड एंड प्रीन ग्लैंड और उसका कंफ्यूजर दूसरे कौन से ग्लैंड है, क्या बात है, ग्रीन ग्लैंड। वाह वाह वाह। नाउ ग्रीन ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, ग्रीन ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, कहां पे, ग्रीन, सॉरी ये तो हो गए प्रीन ग्लैंड। नाउ ग्रीन ग्लैंड कहां पे है, these are the also named as the antennal gland and these are the organ of excretion in arthropoda। उसमें से भी कौन सा क्लास है, क्लास कौन सा है, प्रॉन नहीं, प्रॉन इज द एग्जांपल, क्लास है क्रुस्टेशियंस, क्रुस्टेशियन क्लास है। उसमें दोस्तों इसके आगे वाला जो टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये हम देखने वाले हैं। तो वहां पे प्रीन ग्रीन ग्लैंड होते और ये है प्रीन ग्लैंड। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। सो प्रीन ग्लैंड पक्ष्यांमध्ये असतात, ओके, P for preen gland or P for पक्षी। सॉरी, प्रीन ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड कोणामध्ये, पक्ष्यांमध्ये प्रीन ग्लैंड, ओके, जरा लक्ष द्या, जस्ट वेट। पक्षी त्याच्यामध्ये प्रीन ग्लैंड आहेत, आलं लक्षात, आणि ग्रीन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दोस्तों दैट इज दे आर प्रेजेंट इन, कंफ्यूजर बाद में लिखता हूं चाहे तो, प्रीन और ग्रीन ग्लैंड। एंड ये कहां पे, बेस ऑफ द टेल पे है, कहां पे है, बेस ऑफ द टेल। इज दैट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट, अगर इनमें रेस्पिरेशन देखा जाए तो बाय लंग्स है और एयर सैक होते हैं दोस्तों। मान लो फॉर एग्जांपल दीज आर द लंग्स, यहां पे मान लो ये है लंग्स, ओके। नाउ दीज लंग्स दे आर सप्लीमेंटेड विद द दोस्तों एयर सैक लाइक दिस, these are the ear sac। so again ये होलंट एडाप्टेशन का ही एक एग्जांपल है। so these are दोस्तों ear sac, their lungs are supplemented with the ear sacs, याद रखो। and these are the lungs, these are the lungs, their lungs are supplemented with दोस्तों ear sac, याद रखो, their lungs are supplemented with the ear sac like this। ऐसे ear sac होते उसमें ear होगी दोस्तों। so these are also Holland adaptation। Holland adaptation means that is adaptation made by bird for flying, okay। aerial adaptation होता है। skull monocondyl लिखा है, organ of sound जो उनका जो आवाज आता है, ओके, अलग अलग अलग, तो इसका नाम है दोस्तों सैरिंक्स, उसे कहते हैं होकल ऑर्गन। लॉन्ग बोन जो है दे आर हॉलो विथ एयर कैविटीज, उन्हें कहा जाता है न्यूमॅटिक बोन। न्यूमॅटिक म्हणजे न्यूमॅटिक मतलब पोकळी असणे, पोकळ आहेत ते, पोकळ आहेत बोन, पोकळ मीन्स हॉलो, न्यूमैटिक बोन मीन्स ऐसे बोन जो हॉलो है, ओके, अंदर से बोन मैरो जो है वो नहीं उनमें, उसे कहते हैं पोकळ हाडं असणे, ओके। अंदर क्या है दोस्तों, याद रखो, न्यूमैटिक बोन है, लॉन्ग बोन, ईयर कैविटी है, देयर इज अ नो बोन मैरो, एमसीक्यू, बोन मैरो इज एब्सेंट। नाउ व्हाट इज बोन मैरो, बोन मैरो एक टिश्यू है दैट दोस्तों इट इज द साइट ऑफ हेमाटोपोएसिस, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, तो वो नहीं होती है उनके लॉन्ग बोन में, दूसरे जगह पे होगी लॉन्ग बोन और हॉलो। एमसीक्यू, एंडोस्केलेटन पूरा बोन ही होता है, ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन है, मेड अप ऑफ दोस्तों बोन एंड लेफ्ट ओरीज लेफ्ट। इसका मतलब जो फीमेल बर्ड है उनमें नॉर्मली फीमेल में 2 ओवरीज होते हैं, ह्यूमन बीइंग में 2 ओवरीज होते हैं, राइट और लेफ्ट ओवरी, एंड ओवरी इज द प्राइमरी साइट ऑफ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, बिकॉज ओवरी हैज एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओहम और एग, तो उनमें सिर्फ लेफ्ट ओवरी ही होती है, 2 ओवरी है तो एक ही ओवरी बची हुई है, इसे कहते हैं लेफ्ट ओवरी इज लेफ्ट, लेफ्ट ओवरी इज लेफ्ट, बाकी राइट ओवरी एब्सेंट है,
बेटा लेक्चर मध्ये सेजल, लेक्चर झालं कॉल करतो. हा हा ठीक. सो लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट मीन्स राइट ओरी इज अब्सेंट इन फीमेल. याद रखो एक ही ओरी बची हुई है और वो है लेफ्ट, तो याद रखेंगे लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट. दे आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक, एंडोथर्मिक एनिमल है, मीन्स दे हैज एबिलिटी of homeostasis. Now homeostasis means it is an ability of that animal to regulate their body temperature at a constant level, and their body temperature does not dependent on the external temperature. क्या बात है. So these are the first homeothermic animal, warm blooded animal दोस्तों. और mammals are also warm blooded animal. तो निम्नलिखित है BMW. क्या निम्नलिखित है? BMW. bird and mammals are warm blooded animal. Now digestive tract, they have additional chamber called as दोस्तों crop. Now crop क्या होता है? Crop is for storage of food. जैसे हमारे बॉडी में स्टमक है, इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, वैसे ही उनके बॉडी में एक एडिशनल चेंबर होता है क्रॉप, उसे कहते हैं दोस्तों स्टोरेज, दैट इज ऑर्गन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड. और गिजार्ड एक एडिशनल चेंबर है. एंड नाउ गिजार्ड फॉर ग्राइंडिंग, जैसे हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये जी फॉर गिजार्ड एंड जी फॉर ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग मीन्स ग्राइंडर और मिक्सचर, आपको पता होगा ग्राइंडर और मिक्सचर क्या करता है. व्हाट इज द मिक्सचर और ग्राइंडर इज डूइंग, that larger particles are broken down into the smaller one. ये इसके डाइजेस्टिव ट्रैक में एक अलग सा ये होता है. दो चेंबर है क्रॉप और गिजार्ड. सेक्सुअलिटी डायोसियस है, कोमड़ा कुमड़ी तुम्हारा माहिती है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, पैरिटी ओवी पैरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, और फ्लाइटलेस बर्ड है दोस्तों ऑस्ट्रिच. नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये होगा बर्ड के बारे में, बहुत इजी है ये एक्चुअली, बर्ड और मैमल भी. नाउ प्लीज पे अटेंशन. What are the Holland adaptation? मैं लेके जाना चाहूंगा आपको टॉपिक इकोलॉजी में. टॉपिक है इकोलॉजी 12th साइंस का. Now what is meant by Holland adaptation दोस्तों इन बर्ड? क्या होते हैं Holland adaptation? सॉरी, now see this. See this. These are the lungs. ओके एक एक डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं, ये मिली है तो. नाउ दोस्तों यहां पे देखो, these are the lungs. ओके दिख रहा है आपको? These are the lungs. ओके ये दो ब्लू लंग्स है, और यहाँ पे दोस्तों these are the ear sac. ये क्या है? ये दो एंटीरियर ear sac है, नीचे दो पोस्टीरियर ear sac है. So lungs with the ear sac. Okay, this is a unique feature of bird, that is lungs with ear sac. Lungs with the ear sac. ये यूनिक फीचर है बर्ड का, यूनिक फीचर ऑफ बर्ड, फीचर ऑफ बर्ड्स, याद रखो. बट यहां पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन. मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन लंग्स ही है. लंग्स इज द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, हमेशा याद रखो. बहुत सारे लोग लिखते हैं एयर सैक, गलत. मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड इज द लंग्स. दो पर एयर सैक दे सप्लीमेंट द लंग्स. लंग्स को सिर्फ हेल्प कर रहे हैं इन रेस्पिरेशन, बट मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है दोस्तों? दैट इज मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज लंग्स ही है. नाउ अगेन see this.
फिर तो भी लिस्ट होनी चाहिए होलैंड एडाप्टेशन की। अगर है तो ठीक है, नाश्ता मैं लिख के देता हूँ। चलो नहीं है तो छोड़ो। दैट इज दूसरा देखेंगे दोस्तों, क्रॉप एंड गिजार्ड इन बर्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड। Now see this. Now see this. This is the digestive tract of the bird. Okay, this is the digestive tract of bird दोस्तों। Okay, यहाँ पे क्या है? Now see this. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोस्तों मान लो ये है माउथ। This is an mouth. Now ये है क्रॉप, फिर स्टमक और फिर गिजार्ड है। Now ये जो क्रॉप होता है दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर दिस क्रॉप, ये एक एडिशनल चेम्बर है। दिस इज इट इज फॉर याद रखो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है। कॉकरोच में भी होगा, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए दोस्तों, स्टोरेज ऑफ फूड कुछ देर के लिए। फिर स्टमक और यह है फिर गिजार्ड। एंड दैट गिजार्ड किसके लिए दोस्तों? दैट गिजार्ड इज फॉर, याद रखो गिजार्ड जो होता है इट इज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। एमसीक्यू, ये जो गिजार्ड है दैट गिजार्ड इज फॉर दोस्तों ग्राइंडिंग, जी फॉर गिजार्ड एंड जी फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। एमसीक्यू, ग्राइंडिंग मतलब दैट मेकिंग द लार्जर फूड पार्टिकल इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? ग्राइंडिंग मतलब दोस्तों दैट इज कन्वर्जन ऑफ, भुगा करने, कन्वर्जन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन। इसे कहते हैं ग्राइंडिंग, फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन। समझा? स्मॉलर वन इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज गिजार्ड। एंड दीज आर द टू एडिशनल चेम्बर दैट इज इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड। टू एडिशनल चेम्बर्स होते हैं, टू एडिशनल चेम्बर्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, ट्रैक्ट ऑफ बर्ड, टू डाइजेस्टिव इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड। और दोस्तों वो है दैट इज, पहले आएगा क्रॉप और फिर बाद में आता है गिजार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले क्रॉप आता है फिर बाद में आएगा गिजार्ड। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है क्या नहीं? यस और नो? जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग, जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग। समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट आर द होलैंड एडाप्टेशन इन बर्ड? नाउ व्हाट आर द होलैंड एडाप्टेशन इन बर्ड दोस्तों? व्हाट आर द होलैंड एडाप्टेशन? किसे कहेंगे होलैंड एडाप्टेशन? पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मीन बाय होलैंड एडाप्टेशन? होलैंड एडाप्टेशन कहते किसे है? होलैंड एडाप्टेशन एएमसी क्या आएगा टॉपिकोलॉजी में, या फिर इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज अ एरियल एडाप्टेशन। ये आपके सिलेबस में है 12th में। होलैंड एडाप्टेशन और एरियल एडाप्टेशन, दीज आर द एडाप्टेशन इन द बर्ड्स दोस्तों। These are the adaptation in those animals which have aerial mode of life. These are the adaptation. Holland adaptation क्या है दोस्तों? These are adaptation means to get adjustment to the surrounding environment. These are adaptations. These are the adaptations in those animals, in birds, in those animals which have दोस्तों that is aerial mode of life, which have aerial mode of life means which have aerial habitat. Okay, or these are दोस्तों, what is the list of that Holland adaptation? number one that is the streamlined body. Number one. Number two, that is दोस्तों that is four limbs are modified into wings for flying. Okay, modified, ये modified नहीं है, they are modified into wings. कुछ लोग इसे modified पढ़ेंगे, गलत। होलैंड एडाप्टेशन। नाउ दोस्तों होलैंड एडाप्टेशन किसके लिए है? फॉर फ्लाइंग के लिए होता है। किसके लिए है? फॉर फ्लाइंग, ये भी याद रखो। तो जितना जितना वजन कम कर सकते हैं उतना, दैट इज दोस्तों न्यूमैटिक बोन।
न्यूमैटिक मतलब क्या है? न्यूमैटिक मतलब दोस्तों हॉलो बोन है। दैट इज न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक बोन का मतलब होता है, न्यूमैटिक बोन्स मीन्स बोन्स आर हैलो विथ एयर कैविटीज। उनमें ईयर होंगी, ईयर कैविटीज। देयर इज अब्सेंस ऑफ दोस्तों बोन मैरो। और नंबर 4 पे होगा, 2 ओरी नहीं है, एक ही ओरी है दोस्तों। सो ओनली लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट, राइट ओरी गायब होती है, ओनली लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट। ये कुछ फीचर है, और भी होंगे, पर ये इंपॉर्टेंट फीचर है, प्राइम फीचर है, दैट इज ऑफ होलैंड एडाप्टेशन। लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट, याद रखो। ओके, लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट, इसे कहते हैं दोस्तों होलैंड एडाप्टेशन और एरियल एडाप्टेशन फॉर फ्लाइंग इन बर्ड। ओके, होलैंड एडाप्टेशन का मतलब है दोस्तों, these are the adaptation okay which are for flying। किसके लिए है? these are for flying, इसे कहते हैं होलैंड एडाप्टेशन, these are for flying। ओके, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये एरियल और फ्लाइट के लिए होते हैं होलैंड एडाप्टेशन। ओके, बाकी बाकी ठीक है। हाँ, और एक बाकी है, दैट इज दोस्तों 5 नंबर पे, दैट इज lungs are supplemented by। lungs के साथ क्या क्या है? supplemented by दोस्तों by air sac, ये भी एक फीचर है। these are the Holland adaptation for flying। हवा ही हवा है बॉडी के अंदर ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके, समझे? प्रेरणा सावंत, समझे बेटा? होलैंड एडाप्टेशन और एरियल एडाप्टेशन आर दोज which have aerial mode of life present in those animal which have aerial mode of life। टॉपिक इकोलॉजी, टॉपिक दोस्तों इकोलॉजी से रिलेटेड है, ये इकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू है, याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इज दैट, एंड दिस इज अबाउट द बर्ड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड और रेप्टाइल एंड बर्ड पता है आपको कौन है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड पता है कौन है? ओके, connecting link between reptile and bird, connecting link, topic evolution, connecting link between दोस्तों, that is between reptile and bird। कौन है? reptiles and bird। इसे connecting link नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं missing link। now what is difference between missing and connecting link? आप में से कोई मुझे बता सकता है? ये जो missing link है, not connecting link, it is called दोस्तों missing link। और कौन है मिसिंग लिंक? ओके, कौन है? आर्चियोप्टेरिक्स है। ओके, आर्चियोप्टेरिक्स इज द मिसिंग लिंक। बहुत ही बढ़िया, क्या है दोस्तों? आर्चियोप्टेरिक्स इज द मिसिंग लिंक। उसका आंसर दैट इज आर्चियोप्टेरिक्स इज द मिसिंग लिंक है। आर्चियोप्टेरिक्स इज द मिसिंग लिंक दोस्तों बिटवीन Archaeopteryx is the missing link Archaeopteryx is the missing link between reptile and bird। और इसके अलग अलग फीचर्स है, रेप्टाइलियन फीचर्स अलग है और बर्ड के फीचर अलग है। ये है दोस्तों, ये है बर्ड आर्चियोप्टेरिक्स। वाह, ये है आर्चियोप्टेरिक्स। ओके, नाउ वाह, बहुत ही बढ़िया, जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। टॉपिक एक्चुअली इवोल्यूशन है, पर ये बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बर्ड जो यहाँ पे मेंशन है।
एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेप्टाइल। रेप्टाइल के क्या फीचर्स है और बर्ड के क्या फीचर है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर बात करेंगे। फीचर्स ऑफ रेप्टाइल बर्ड, ये टॉपिक एक्चुअली इवोल्यूशन से बिलोंग करता है, बट याद रखो कि दोस्तों यहाँ पे मेनी कॉनिकल टीथ होते हैं इन जॉ इज द फीचर ऑफ रेप्टाइल। ओके, टीथ इन जॉ, मैं रेप्टाइल की फीचर कैसे मार्क करूं? ओके, ब्लैक से मार्क करता हूं रेप्टाइल। ओके, रेप्टाइल की फीचर ब्लैक से मार्क करता हूं, ये है आर रेप्टाइल का फीचर्स, प्रेजेंस ऑफ टीथ इन जॉ। ओके, नाउ याद रखो, लॉन्ग आर्म विथ long fingers and curved claws, these are also curved claws is also feature of दोस्तों reptile, curved claws are also feature of reptile। long flight feather on wings, दोस्तों this is a feature of bird, ये bird का feature है, याद रखो, this is a feature of bird, wings होते हैं और feathers भी है, this is a feature of bird। now long thigh and short calf, large eyes, long neck, लाइट वेटेड फीदर्ड बॉडी, ये भी बर्ड का ही फीचर है, फीदर्ड बॉडी, दिस इज फीचर ऑफ बर्ड। लॉन्ग स्ट्रेट फीदर्ड टेल, ओके, एक्चुअली टेल जो है दोस्तों, टेल ये फीचर रेप्टाइल का है, ये फीचर रेप्टाइल का होता है, याद रखो, और फीदर जो है वो बर्ड का फीचर है। सो विंग्स आर मॉडिफाइड, फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, या हैंडलिम है, ये बर्ड का फीचर है। टेल ये रेप्टाइल का फीचर है, दैट इज ये यहाँ पे जो कहा है कि कर्व्ड क्लॉज, ये जो फीचर होता है दोस्तों कर्व्ड क्लॉज, एंड दिस इज अ फीचर ऑफ रेप्टाइल। न्यूमैटिक बोन फीचर ऑफ बर्ड होगा इसमें, कुछ बर्ड और रेप्टाइल की फीचर है। द मीनिंग ऑफ टर्म आर्चियोप्टेरिक्स मींस एंशिएंट विंग, ये ऐसा रेप्टाइल है दोस्तों जो फ्लाइंग की एबिलिटी रखता था। डू यू नो दैट रेप्टाइल से दो चीजें आई है, फिशेस से डेवलप हुए हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से डेवलप हुए रेप्टाइल, पर रेप्टाइल से डेवलप हुए हैं बर्ड और मैमल। एमसीक्यू, ऐसा नहीं कि बर्ड से फिर मैमल डेवलप हुए, नहीं नहीं नहीं, फिशेस से डेवलप हुए एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से डेवलप हुए रेप्टाइल, और रेप्टाइल से फिर दो अलग अलग चीजें डेवलप हुई, बर्ड और मैमल। हमेशा याद रखो, ऐसा नहीं कि बर्ड से फिर मैमल डेवलप हुए। ये आर्चियोप्टेरिक्स मिसिंग लिंक किसे कहेंगे, जो अभी जिंदा नहीं है, जो फॉसिल के फॉर्म है उसे कहते हैं मिसिंग लिंक्स, और कनेक्टिंग लिंक इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है विच शेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू ग्रुप्स, उसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। और मिसिंग लिंक इज अ डेड और फॉसिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, और डेड एनिमल और डेड ऑर्गेनिज्म विच शेयर द फीचर्स ऑफ टू ग्रुप, इसे कहते हैं मिसिंग लिंक। समझे? ओके, जो एक्सटिंक्ट हुआ है उसे कहेंगे मिसिंग लिंक, बरोबर आहे। सध्या जगणारे कनेक्टिंग लिंक आणि जे गायब झाले ते मिसिंग लिंक। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। सो दिस इज अबाउट द बर्ड, फिनिश। इतना ही है, इतना ही याद रखो बर्ड के बारे में, बस इतना ही याद रखो। ओनली लेफ्ट और इज लेफ्ट। नाउ अभी ये समझ में नहीं आता है, मान लो ये है राइट, ओ सॉरी, ओनली लेफ्ट और इज लेफ्ट, मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या कॉन्सेप्ट होता है। मान लो दोस्तों मान लो I'm trying to explain something very very important. Now ये डायग्राम आपको सबको पता है, किसके डायग्राम है ये? कोई मुझे बता सकता है? This is a diagram of, this is a diagram of, कोई मुझे बता सकता है ये किसके डायग्राम है? किसके डायग्राम है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग की। दिस इज वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ये है दोस्तों दैट इज फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, उसके अलग अलग पार्ट है वो। और ये जो दिया है दोनों साइड पे दो, क्या है ये दोनों साइड पे दो क्या है दोस्तों? ये है ओवरी। मान लो अभी मेरे अंदर तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, आई एम अ मेल,
तो मान लो कि यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में 2 ओरी है, तो मान लो ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो मान लो ये कौन सी ओरी है, ये है राइट ओरी, दिस इज द राइट ओरी, और दोस्तों ये है लेफ्ट ओरी। मजा आएगा जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, दिस इज एन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल ओरी, क्योंकि ये एग बनाता है। नाउ मान लो किसी कारण से सपोज ये मिडिल एज फीमेल है, इसकी कंप्लीट हो चुकी है फैमिली, 2 बच्चे हैं इसको। नाउ किसी कारण से अनफॉर्चुनेटली राइट ओरी में कुछ ट्यूमर वगैरह आ चुका है, इसको राइट ओरी में कुछ ट्यूमर वगैरह आ चुका है, यहाँ पे मान लो सिस्ट वगैरह या फिर कुछ ट्यूमर है, और इसकी वजह से डॉक्टर ने डिसाइड किया है कि इसकी ओरी निकाल लेंगे। ओके, उसे ओफेरेक्टोमी कहते हैं, रिमूवल ऑफ ओरी। और दोस्तों डॉक्टर ने ऑपरेशन करके ये ओरी ही निकाल दी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके ये जो ओरी है वही निकाल दी है। तो बची कौन सी, बॉडी के अंदर कौन सी लेफ्ट रही है, आप बोलते ना कौन सी बची है, लेफ्ट। तो लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट। ओके, हम बोलते हैं बाकी सब खत्म हो गया है, यही बचा है। ओके, हम बोलते हैं सपोज काही आता तुम्हाला बघत असताल तर पूर वगैरे आलाय सपोज, ओके, आपण म्हणतो सगळं वाहून गेलं, काहीच राहिलं नाही, एवढंच राहिले। ओके, ओनली दीज थिंग्स आर लेफ्ट, बाकी सब चला गया। सो दोस्तों लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट, उसमें भी फीमेल ओरी में नेचुरल, फीमेल बर्ड में नेचुरल राइट ओरी एब्सेंट होती है, ओनली लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट। नाउ क्लियर, ये मुद्दा क्लियर है? नहीं होती है, वो गायब होती है। लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट, समझे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी, बाद में वो गायब होती है। सो लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट का मतलब ये होता है, लेफ्ट ओरी इज लेफ्ट, समझे? इज दैट क्लियर? हो तो फिनिश, ये है बर्ड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर बचा है, कल तो छुट्टी है। ओके, मेरे घर में शादी है तो मुझे जाना पड़ेगा, और वरना ये कल टॉपिक खत्म हो जाता है। ओके, एंड ऑफ ये फैलोपियन ट्यूब के फिम्बरी कहते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें फिम्बरी कहा जाता है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, अरे गायब हो गए, इसे फिम्बरी कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों फिम्बरी। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें कहा जाता है फिम्बरी। ओके, दे हेल्प इन टू कैप्चर दी ओहम रिलीज फ्रॉम दैट ओवरी। ये फिम्बरी होते हैं। ये एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा इनफंडिबुलम होता है, लाइक दिस। यहाँ पे एम्पुला होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑल दैट, ठीक है? ओके, नहीं शादी है तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ बेटा, पैसा नहीं है, बंगला नहीं है, फक्त आई आई। ओके, कोई बात नहीं। नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा ये टॉपिक। ओके, काटे सर दूसरा मॉर्फोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टेड पढ़ाते हैं सर। ओके, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द लेक्चर, आपको भी मजा आएगा वहां पे। ओके, तो फिर मैं मैसेज करता हूँ इवनिंग को, लेक्चर है क्या नहीं। ओके, इस संडे को टेस्ट रहेगी दोस्तों, और मैमिलिया पढ़ो, पूरा टॉपिक ले लेंगे एक एक का। मैमिलिया पढ़ो आप, थोड़ा सा देखते हैं कितने लोग हैं जो मैमिलिया पढ़ के विदाउट टीचिंग एग्जाम दे सकते हैं। और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी छोड़ के और डिसऑर्डर छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। ओके, चलो। और 5 सितंबर को हमारी जंबो टेस्ट है, फास्ट ट्रैक वाली, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करो, ठीक है? थैंक यू। रेप्टाइल तक नहीं, यहां तक है, बर्ड तक है, बर्ड तक, ठीक है? काटे सर को मैं बोलता हूँ कल लेने के लिए, तो कल से शुरू करेंगे। और ये जो एक मैमिलिया बचा है वो मैं कंप्लीट कर लूंगा, और ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। फिर मैं शुरू करूंगा दोस्तों, ह्यूमन फिजियोलॉजी कंटिन्यू रखेंगे, जो लिविंग वर्ल्ड टॉपिक है उसके बाद में भी लिया तो भी चलेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है नहीं, इसलिए मैं वो थोड़ा सा लेट ही लेता हूँ। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर हमारा स्ट्रांग होता है तो मान लो ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आते 13 या 14 क्वेश्चन आएंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 टॉपिक हुए हैं, 4 बचे हैं। तो ऐसे ही एक्सक्रीटरी
बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया, थोड़ा सा लेंदी हुआ ये टॉपिक, पर बहुत सारी चीजें हमने कवर की है। अभी ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन ये छोटा टॉपिक है, इसके बाद भी एक छोटा टॉपिक है लोकोमोशन मूवमेंट, तो उसके बाद एक बड़ा टॉपिक है दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और फिर हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये दोनों है, तो वो भी पढ़ेंगे। और धीरे 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 फिर मैं बढ़ूंगा दोस्तों, जो 11 का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट लगता है लोगों को, एआईबी के स्टूडेंट को नहीं, लोगों को लगता है कि सबसे डिफिकल्ट है। ये न्यूज भी आई थी पिछले साल कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, मतलब आपका 11 का 50%, मोर देन 50% नहीं 60-70% सिलेबस हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है। और ये तो यूनिट होने वाला है, ये तो खत्म ही होगा, एक ही तो टॉपिक बचा है, उसको टाइम नहीं लगेगा। तो जल्दी खत्म करके मल्टीपल रीडिंग करना है और रैंक लाना है, ये हमारा टारगेट है। इसीलिए कि मुझे आप ही पढ़ाओ सर, आप ही पढ़ाओ, आप ही पढ़ाओ, ये थोड़ा सा एटीट्यूड थोड़ा बाजू में रखो। जल्दी, अगर सही में आपको लग रहा है कि नहीं अप टू द पॉइंट या फिर उतना नहीं है सर का, तो फिर सोचेंगे। पर मुझे लगता है, मैंने बाय एक्सपीरियंस, सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।